Hey everyone, my name is Shushankar and you are watching Tech Interview with Shiv. Friends, starting a career after a break is really difficult and we have to face a lot of difficulties. We have to go through a lot of things. So, in today's video, we have a very special guest, Atul Tode. So, he took a break for almost 3 years and he resumed his career now. So, he's going to share his experience, what problems he faced, how he started with his journey and all. So let's start with the video. So first of all, अतुल मेरा बहुत अच्छा दोस्त है. हम कॉलेज में साथ में पढ़ते थे और वेयर क्लासमेट्स. तो अतुल के इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं. Hi Atul, thank you so much for joining on this platform to share your experience. Uh, let's Uh, start with uh, introduction. Thanks, Shivshankar, for calling me on this show. And I'm very grateful that you are inviting me on this show. And I hope this half an hour interview will help all of those who are resuming their career from pause in their career. So, hi all. My name is Atul Tode, and I am from Nanded district in Maharashtra state, which is southeast of Maharashtra. And I did my BTech from Walchand College of Engineering, Sangli in 2019. And as Shiv Shankar said, we are a batchmate, and we both graduated from Information Technology Department, that is IT. So after that, I did my internship in one of the reputed company, and after that I did a job as a full-time employer, and I work on LinkedIn project for 4 months. And after that I quit my job, and want to go for higher studies, or for preparing. I want to go for a preparing competitive exam, that is the prestigious UPSC civil services exam. So I went there. I spent 3 years of my prestigious years of my life there, and after that, from last 2 to 3 months, I'm revising my concepts, engineering concepts, and from October first week, I'm started to apply for various companies, and fortunately I got an offer from one of them. Yeah, I think this is a really great introduction. So, Atul, jab, you said you worked for around 4 months and you then decided to go for UPSC. तो क्या रीजन था कि आप यूपीएससी जाना चाहते थे? सो बेसिकली क्या था कि मैं जब सिमेंटिक में था ना, जब इंटर्नशिप कर रहा था, तो एक इम्पोर्टेंट किस्सा मुझे याद आता है. तो हमारे सिमेंटिक के कलीग्स थे वहाँ पे. तो हम ऐसे डिस्कस कर रहे थे, मतलब वी आर जस्ट डिस्कसिंग ऑन एनी टॉपिक्स. देन ही सडनली सेड दैट माय साला इज नाउ आईएएस ऑफिसर. उनके साले की, मतलब आईएएस ऑफिसर जो भी थे उनके साले, तो उनकी बहुत तारीफ कर रहे थे. मतलब बोलने से ऐसे पता लग रहा था कि भाई, हाँ, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मतलब ज्यादा भाव मिलता है, एज हम्म. नॉर्मल वर्ड्स में अगर कहते. तो दैट्स द थिंग कि एंड आफ्टर आई रियलाइज कि भाई, in our society ना, the government employee has more weightage. कि भाई हम सोसाइटी के लिए ज्यादा यूजफुल हो सकते हैं जब हम्म. मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय में जाऊँ. Right, and this is a really great mindset because you have to serve the society as well. So yeah, basically you got that motivation from that colleague, and you also wanted to serve the society. So I think you attempted UPSC twice, right? And in 3 years of time span. So आपको Yeah. कब लगा कि now I want to resume my IT career? आप और आपको क्यों लगा कि अभी फिर से आपको आईटी में आना चाहिए? I pre-decided when I quitting my job 3 years back. I can almost spend 2 to 3 years in this. If I get, then it is great. If I didn't, so I pre-decided to rejoin IT industry back. So if when I did my second attempt in this year June 5th,
and when result came on 21st June, and unfortunately I didn't qualify for next round, so I started decided to rejoin IT. So I Okay, great. pre-decided only when I quitting my job ki I have to spend only 3 years on this. Right. Okay, so आपने पहले सोचा था कि हाँ, I'll spend this much of time on this, and if I'm not getting what I want in this time duration, then I'll probably resume back. तो Yes, when yes. you wanted to resume, uh, मतलब कैसा आपका सफर रहा? Because it's not that easy to again follow the same path, right? तो क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस किए और क्या आपका प्लान था? क्या आपके दिमाग में चल रहा था कि कैसे ये रिज्यूम करेंगे? So basically, when I quitting my job now, so I was working in Raja Software Lab. So हम्म, at that time, what happened in these companies? Ki they interviewing people at every Saturday, every Saturday. So मुझे लगता था कि भाई मतलब every Saturday अगर ये इंटरव्यू ले रहे हैं तो हम्म, मतलब हमारा जब मैं 2-3 साल के बाद भी जब मैं आऊंगा तो अपना तो हो जाएगा, मतलब मुझे डर नहीं था क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस था कि भाई अपना डीएसए वो मतलब बेसिक्स बहुत अच्छा था, तो हम्म, मुझे डर नहीं था कि मेरा नहीं होगा ऐसा करके, राइट। कि आई वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट इन दैट. सो दैट्स हम्म, व्हाई आई डिसाइडेड टू क्विट. एंड हम्म, जब तो मेरे दिमाग में यही था कि भाई कॉलेज से तो हो गया, अब ये कैसा होगा मतलब कि रेफरल से या कुछ. तो मुझे एक थोड़ा कॉन्फिडेंस भी था कि भाई हमारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे पोजीशन पे गए हुए हैं, अभी 2-3 साल हो चुका है और डाइवर्स कंपनीज में थे, तो मुझे था कि रेफरल तो मिल ही जाएगा ऐसा मुझे था. तो मुझे हम्म, सिर्फ अच्छा प्रिपरेशन करना था, ये मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी था कि भाई अपना डीएसए और प्रोजेक्ट्स मतलब रेज्यूमे अच्छा बिल्ड करूं और रेज्यूमे के डिपेंड में जो भी रेज्यूमे में है उसको मैं अच्छी तरह से इंटरव्यू में रिप्रेजेंट करूं, बस मुझे यही करना था. क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई रेफरल तो मिल ही जाएगा. जब ये कब लग रहा था, जब मैं रिज्यूम कर रहा था मेरे प्रिपरेशन के बाद तब. हम्म, तो वैसा था कि भाई मुझे कोई मतलब डर नहीं था कि मेरा नहीं होगा या कुछ. हम्म। कितनी कंपनी के लिए आपने अप्लाई किया और कितनी कंपनी के बाद यू गॉट दिस जॉब? व्हाट? I started applying as I earlier said on October first week. हम्म, Uh, on LinkedIn, I applied for 50, almost 50 companies, ओ, and I also applied on Monster website. I also applied on InstaHire website. I also हम्म, applied on Angel List करके एक वेबसाइट है, हम्म, Naukri.com पे भी है. तो वहां पे मतलब ऑलमोस्ट मैं 25 to 30 कंपनीज को मैं अप्लाई किया था. मतलब ऑलमोस्ट आप देखोगे तो मैंने कम्युलेटिवली टोटली 100 कंपनीज, तो 100 कंपनीज के लिए अप्लाई किया होगा मतलब. राइट। तो कितने तो जब आपने अप्लाई किया, कितने रिक्रूटर्स ने रीच आउट किया व्हेन यू अप्लाइड? तो आपको सरप्राइज होंगी कि एक भी रिक्रूटर ने मतलब अप्रोच नहीं, अप्लाई रिक्रूटर ने अप्रोच किया था, पर हाँ, वो कैसा था कि वो मतलब एज अ फ्रेशर मुझे काउंट कर रहे थे, एंड उनका एलपीए था कि भाई 2.5 एलपीए टू 5 एलपीए के बीच उनका रेंज था. अच्छा। और वो मुझे iOS डेवलपर के लिए कॉल कर रहे थे, और मुझे हम्म, माइक्रो सर्विसेज जावा को स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क जो है उसके हम्म, लिए अप्रोच किया था. तो ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे कॉल नहीं आए थे अराउंड 10 के पास कॉल आए थे कि ऐसा हम्म। ऐसा है करके. तो बट मतलब जो कंपेटिबिलिटी की वजह से हाँ, वगैरह डिडंट गो अहेड, राइट? या और जब आपने शुरुआत करने की कोशिश की, आई थिंक जब जब आपने सोचा था, आई थिंक यू स्टार्टेड ऑलमोस्ट 3 मंथ्स बैक, राइट? तो या दिमाग में क्या चल रहा था कि कौन से टेक्नोलॉजीज, कौन से सब्जेक्ट्स, टॉपिक आपको रिवाइज करनी चाहिए? ये डाउट तो मतलब मैंने जब हमारा इंटरव्यू प्लेसमेंट ऑफर्स आ रहे थे हमारे कॉलेज में, तब भी ये मतलब इसमें गया था, तो मुझे इस बार पता था कि भाई क्या करना है और क्या नहीं करना है. ये मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक एग्जाम के लिए कि आपको क्या राइट, करना है और क्या नहीं करना है. तो राइट, वहां पे हम अपना कैसा हो रहा था कि भाई कोई कंपनी आ रही है जैसे कि सीमेंस सीपीपी ज्यादा पूछती है एज कम्पेयर राइट, टू जावा और उसके हिसाब से.
तो हम Right. क्या करते थे कि सीमेंस आ रही है तो चलो दो दो वीक्स सीपीपी करते हैं डायरेक्ट। Right. तो अगर Right. अगले बार पबमेटिक्स आई तो चलो जावा ही करते हैं पबमेटिक्स के लिए। तो अगले Right. बार कोई और कंपनी है जो डेटा एनालिटिक्स में हडूप पे काम करते हैं तो चलो भाई वो भी देखते हैं। मतलब Right. ऐसा कि जो आई उसके पीछे दौड़ने का, बस कोई स्ट्रैटेजी नहीं था, कोई प्लान नहीं था, कोई ये नहीं था। तो इस Exactly. बार मतलब मैं उस फेज से गया था तो मुझे एक नहीं करना था, तो मेरा फिक्स Hmm. क्राइटेरिया था। मैं जब रेफरल के लिए भी बोल रहा था हमारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स के को, तो उनका भी ऐसा ही था कि भाई कोई क्लाउड कंप्यूटिंग में था, कोई एडब्ल्यूएस पे काम कर रहा था, कोई डेटा एनालिटिक्स पे काम कर रहा था। तो उनका कहना था कि अगर मैं क्लाउड के बंदे के पास जाऊं रेफरल मांगने के लिए तो वो बोल रहा था कि अतुल you have to do this course on Udemy or some on courses platforms। एंड Hmm. कोई डेटा एनालिटिक्स के बंदे के पास जाऊं जो डेटा पे काम करता है तो वो बोल रहा था कि यू हैव टू डू दिस कोर्स देन ओनली आई कैन अप्लाई रेफर यू इन माय कंपनी। तो ऐसा था। तो इस बार मेरा फिक्स था कि भाई ऐसा करना नहीं है, क्योंकि Hmm. कोई भी अगर न्यू कोर्स आप कर रहे हो ना तो मिनिमम एक्सपर्टीज बनने के लिए 3 मंथ तो लग ही जाएंगे आपको, अगर डेली Right. 8 आवर्स तक आप उसको डेडिकेटेडली कर रहे हो तो Yeah. मेरा तो सिंपल था कि भाई अपना डीएसए एकदम अच्छी तरह से करना है। और Hmm. जावा मेरा, क्योंकि जावा मिक्स में भी अच्छा ये किया था प्रोजेक्ट, तो आई वांट टू कंप्लीटेड जावा फर्स्ट, जावा Hmm. कोर ऑल द कंसेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जावा। तो Hmm. वो मेरा क्लियर था कि वो फर्स्ट करने का है, और उसके बाद डीएसए, और उसके Hmm. बाद हमारा जो बेसिक्स रहता है जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, नेटवर्किंग हो गया, तो वो, Hmm. तो ये 4 तो मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी से करने थे। ये Hmm. अगर हो गए, अगर नहीं हुआ सपोज कि 6 मंथ में भी नहीं हुआ मेरा इस कंसेप्ट पे, तो Hmm. मेरा प्लान था कि भाई किसी एक पर्टिकुलर डोमेन को पकड़ के, जैसे कि क्लाउड को हो गया या डेटा को हो गया, तो किसी एक पर्टिकुलर डोमेन को पकड़ के उसमें कुछ कोर्सेस करूँ या कुछ करूँ, और उसके Hmm. बाद उसको जाऊँ। तो ऐसा मेरा स्ट्रेटेजी था इस बार। Hmm. Great. So basically, for you, it was not kind of very much difficult to resume your career, as you said, हम्म, because you had confidence on your concepts already. College में भी तुम topper ही थे, one of the toppers थे, हम्म, and your concepts were so you had that confidence कि हाँ I can resume easily. And हम्म, जब आपने start भी किया, then also you started properly. क्या क्या चीजें मुझे करनी हम्म, चाहिए. That you हम्म, went through that. You studied those things properly. हम्म, And आपने कोई भी एक भी प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ा जहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं. तो आई दिस इज ग्रेट. एंड जब आपको रिप्लाई नहीं आ रहे थे तो आपका क्या माइंडसेट था, मतलब आपको क्या लगता था कि मतलब क्या शुरू हम मतलब रिज्यूम कर सकते हैं नहीं कर सकते, क्योंकि व्हेन यू अप्लाई फॉर मोर देन 100 कंपनीज एंड व्हेन यू गेट वेरी लेस रेस्पॉन्सेस, देन यू एट दैट टाइम हम्म, यू माइट लाइक भाई मेरा रिज्यूम खराब है या मेरे ब्रेक की वजह से ये लोग मुझे रीच आउट नहीं कर रहे, मतलब हाँ टाइम आपके दिमाग में. हम्म। तो बेसिकली मैं बहुत डर गया था, सिंपली हम्म. अगर कहो तो, क्योंकि मुझे पता था कि जब हम ऑफ कैंपस जाएंगे तो वो इजी नहीं रहेगा, हम्म. क्योंकि मैंने हमारे सीनियर्स को देखा था कि उसने बोला था कि जो मीडिया.नेट में था, मतलब अच्छे हम्म. कंपनीज एज अ डेवलपर पे काम कर रहा था, उसने भी बोला था कि भाई हम्म. मैंने हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज को अप्लाई किया पर एक ने भी रिप्लाई नहीं किया। तो मुझे प्री से भी था कि भाई इसमें हमारा सक्सेस रेट बहुत कम मिलने वाला है। तो हम्म. मेरा ज्यादा फोकस तो रेफरल पे ही था कि भाई रेफरल अगर कहाँ से मिल जाए तो ही मेरा काम बनेगा। तो हम्म. मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ इसमें, और एक कि मुझे ऐसा लगा कि अगर मेरा 2 ईयर का एक्सपीरियंस होता ना, उसके हम्म. बाद अगर मैं क्विट करके कुछ करता और बाद में अगर रिज्वाइन करता तो मुझे इजी हो जाता उसमें। क्योंकि राइट. जब मैं लिंक्डइन पे देख रहा था तो हर एक प्रोफाइल पे मिनिमम 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस लिखा ही था। तो हम्म. अगर वो उस पर्टिकुलर डोमेन में एक्सपीरियंस हो या वो तो सेकेंडरी हो गया, पर प्राइमरी राइट. उनका था कि मिनिमम 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यू हैव टू। तो उसकी राइट. वजह से मेरा रिज्यूम ही सेलेक्ट नहीं हो रहा था।
तो मुझे हम्म, एक पॉइंट लगा गलत कि भाई मैंने बहुत जल्दी क्विट किया। एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए था, तब अगर क्विट करते तो मुझे रिज्वाइन करते समय इतनी दिक्कतें नहीं आती। तो आई right. वांट टू शेयर दैट पॉइंट कि इफ समवन वांट टू गो फॉर हायर स्टडीज और समथिंग, so keep in mind ki you have minimum 2 years or 1 years of experience, complete full time developer experience in your hand. So I think this was a big, great experience. Apart from this, we want to share some inputs for the people who are trying to resume their career. Any suggestions or something? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि भाई पहले अपना जो बेसिक्स है डीएसए हो गया, क्योंकि आप मतलब कितने भी सीनियर पोजीशन पे जाओ कोई भी कंपनी में, डीएसए तो पूछेंगे ही पूछेंगे, तो ये तो मस्ट ही है। तो डीएसए पे बहुत अच्छा हैंड्स ऑन होना। जैसे मेरा पबमेटिक का आया था तो उनका जो कोडिंग राउंड था, जैसे ध्रुवा का भी था, ध्रुवा का भी आया था मुझे कोडिंग राउंड। तो उनके कोडिंग राउंड में डीपी के क्वेश्चन, डीपी के क्वेश्चन पूछे थे, पर जो Hmm. एक्चुअल इंटरव्यू में था वो बस हैश मैप ये अगर किया तो भी वो सॉल्व कर सकते थे। पर Right. आप अगर देखोगे तो इनिशियल राउंड में आपको डीपी पूछा, पर एक्चुअल इंटरव्यू में सिंपल क्वेश्चन पूछा। तो Right. मैं कहूंगा कि डीएसए आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। और बाद Hmm. में आपका जो कोर कंसेप्ट है, जैसे कि आप जावा पे काम कर चुके हैं तो जावा कोर अच्छा होना चाहिए। अगर सीपीपी का काम कंफर्टेबल हो तो सीपीपी मतलब अच्छा होना चाहिए। थर्ड पॉइंट ये है कि भाई आपका जो कोर बेसिक आपने सीखा है अपने एकेडमिक्स में, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, ये मतलब पूछते ये तीन होने के बाद अगर तब भी आपका नहीं हो रहा है सपोज, तो आपको किसी एक डोमेन को चूज करना चाहिए। जैसे कि डेटा एनालिटिक्स आज बहुत मतलब डिमांडिंग है कि भाई डेटा में बहुत लोगों का हायरिंग हो रही है, तो डेटा का एक कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं 6 मंथ्स का, या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट ऐसा कर सकते हैं कि भाई मतलब फोर्थ पॉइंट डोमेन चूज किया कि क्लाउड में जाना है या डेटा में जाना है या डेवलपमेंट टीम में जाना है या वेब डेवलपमेंट में जाना है, वैसा। और फिफ्थ में ऐसा कर सकते हो कि अगर आपको कहाँ से मिल गया, जैसे कि मुझे एक कॉल आया था जब मैं Hmm. मॉन्स्टर पे या ऐसे वेबसाइट पे अप्लाई किया, तो मुझे कॉल आया था किसी कंपनी की तरफ से। तो वो बोले Hmm. कि 4,000 में आपको 6 रेफरल्स दिए जाएंगे, जैसे कि ओरेकल था उसमें एक, Hmm. कॉग्निजेंट भी था। तो इस Hmm. कंपनी के 6 रेफरल्स दिए जाएंगे। अगर Hmm. वो आपको मतलब अफोर्डेबल है कि 4,000 में 6 कंपनीज के, और आप कॉन्फिडेंट एनफ हो कि भाई मेरा तो 6 में से किसी एक को हो जाएगा, तो आप उसके लिए भी ट्राई कर सकते हो। ये भी आपके लिए एक ऑप्शन खुल सकता है। Right. और ये होने के बाद एक फाइनल बोल सकता हूँ कि आप एक अच्छा प्रोजेक्ट कर सकते हैं, और Hmm. रिज्यूमी एक अच्छा बना सकते हो कि जो प्रोफेशनल रिज्यूमी हो, और उसमें लिंक देना बहुत जरूरी है। जैसे शिवशंकर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि रिज्यूमी बिल्डिंग में और सजेशंस में, तो आई थैंक्स टू शिवशंकर एंड Great. Yeah. So I think this was a really good experience, Abdul, and your suggestions were also really good. I think this will help the people who are in their career after a break. Thank you so much for joining this platform and sharing. thanks, Shivshankar, and thanks for your efforts in my resume building and guiding throughout the interview process. And I thank Shivshankar especially. He was very great in handling the HR questions and HR communications, because I was facing some HR problems. Then I just asked to Shivshankar about that, so he helped me a lot. So you can also ping Shivshankar for if you have any queries. Ki suppose ki HR is asking you ki what is means expectations, and if HR is not communicating with you regarding your appointment letter, offer letters, so how to communicate them. So Shivshankar guide you on this very well. So well, thanks to meet you, and this is very wonderful experience with you, and thanks. Thank you. Thanks for your kind words as well. And thank you. Have a good day.